Bismillahirrahmanirrahim. 10th class. Today's lesson of chemistry is sulfur compounds. This lesson has been taken from the unit number 14, atmosphere. Now we study the lesson sulfur compounds. Sulfur compounds exist in air just like sulfur dioxide and sulfur trioxide. They are present in air due to two reasons. Number one, natural phenomena, natural reasons. Its existence in air is due to the eruption of volcanoes. When volcanic eruption occur, then these gases, sulfur dioxide and sulfur trioxide, add to the atmosphere. Similarly, when dead organic compound decomposes, in the result of this decomposition, these gases, sulfur dioxide and sulfur trioxide, added in the atmosphere. Similarly, thirdly, forest fire is also a reason of the addition of these gases in the atmosphere. These three things, volcanic eruption, dead organic matter decomposition and forest fire, are the natural reasons of the addition of these gases in the atmosphere. There is no fault of human beings in this feature, but this is the 20% of the pollution which causes the 20% of the pollution. These reasons, the bigger part, the major part, 80% of the air pollution, 80% of the addition of these gases in the atmosphere is artificial, is the result of the human activity. What human activity is a result of this serious destruction? Human activity is the combustion of fossil fuel. When we burn fossil fuel, just like petroleum, just like natural gas and coal, these gases added in the air, and most part of these dangerous gases added in the air in this way. So artificial and human being are the most responsible for the pollution. There are also two effects of sulfur dioxide. Number one, sulfur dioxide is a colorless gas. It has pungent smell. It irritates the nose and the whole respiratory system. It causes in the suffocation and severe respiratory problems to the asthmatic people. Number one point is this. Second is this: sulfur dioxide dissolve in the rainwater and forms sulfuric acid. This sulfuric acid damages the buildings and damages the crops also, and the buildings, especially the buildings which made from limestone and granite and other stones. So this rain is very dangerous for that buildings. So these are two effects of sulfur dioxide. We can also reduce this damage if we separate the sulfur and sulfur compounds from the petroleum
and natural gas and coal, then we can save our environment from these dangerous gases. तो 10th क्लास आज का टॉपिक है सल्फ़र कंपाउंड्स। सल्फ़र कंपाउंड जो ज़्यादातर हमारी एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं वो हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ये दोनों ख़तरनाक डेंजरस गैसेस हैं जो कि नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों तरीक़ों से हवा के अंदर शामिल होती हैं। जो इनके नेचुरल प्रोसेसेस हैं वो हैं वॉल्केनिक एरप्शन यानी कि आतिशफ़शां का फटना, वो है फॉरेस्ट फायर यानी जंगलात की आग, और डिके और डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो मुर्दा अजसाम के जिस्मों का गलना सड़ना। इन तमाम रीज़न्स की वजह से ये गैसेस हवा के अंदर शामिल होती हैं, लेकिन ये पोल्यूशन का सिर्फ 20% हिस्सा बनता है। बाकी जो मेजर हिस्सा, जो बड़ा हिस्सा 80% हिस्सा है पोल्यूशन का, वो इंसान के अपने हाथ में है। वो इंसानी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि पोल्यूशन ला रही हैं। उनमें से सबसे बड़ी एक्टिविटी है बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल यानी कि फॉसल फ्यूल का जलना। फॉसल फ्यूल के अंदर शामिल हैं पेट्रोलियम, कुदरती गैस और कोल। जब ये चीज़ें जलाई जाती हैं तो इनसे सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड हवा के अंदर शामिल हो जाते हैं जो कि बहुत ख़तरनाक हैं, बहुत नुकसान का बायस बनते हैं। इन गैसेस के दो इफ़ेक्ट्स हैं। नंबर 1, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो एक कलरलेस गैस है और इसकी नाक में चुभने वाली स्मेल है, और ये नाक और उसके आगे जितना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें इरिटेशन पैदा करती हैं और सफोकेशन यानी कि दम घुटने का बायस बन सकती है ये गैस। जो लोग पहले से अस्थमैटिक पीपल हैं यानी अस्थमा का शिकार हैं यानी कि सांस प्रॉब्लम का शिकार हैं, उनके लिए ये बहुत ख़तरनाक गैस साबित हो सकती है गैसेस। इसके अलावा सल्फ़र डाइऑक्साइड जब रेन वाटर के अंदर शामिल हो जाती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। ये सल्फ्यूरिक एसिड जब संगमरमर की बनी हुई इमारतों के ऊपर गिरता है तो उनको तबाह बर्बाद कर देता है और नुकसान का बायस बनता है, और फसलों के लिए भी ये गैसेस बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इन गैसेस को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही तरीके से किया जा सकता है कि फॉसल फ्यूल को यूज़ करने से पहले सल्फ़र और इसके कंपाउंड्स को अलग कर लिया जाए। अगर सल्फ़र और इसके कंपाउंड्स को अलग कर लिया जाएगा तो फिर इन गैसेस के डैमेज से बचा जा सकता है। 10th क्लास इस लेसन में शॉर्ट क्वेश्चन हैं 2। पहला है हाउ सल्फ़र कंपाउंड्स डैमेज बिल्डिंग्स। सल्फ़र कंपाउंड कैसे इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका जवाब पेज नंबर 125 पर ये इफ़ेक्ट्स ऑफ SO2 हेडिंग है। इसके अंदर पॉइंट नंबर 2 जो है ना वो इसका आंसर है। सल्फ़र डाइऑक्साइड फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड विच डैमेज बिल्डिंग्स एंड वेजिटेशंस, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ वी कैन रिड्यूस सल्फ़र डाइऑक्साइड इन एयर। हम हवा में से सल्फ़र डाइऑक्साइड को कैसे कम कर सकते हैं। इसका आंसर भी पेज नंबर 125 पे है। टू कंट्रोल पोल्यूशन बिकॉज ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव सल्फ़र फ्रॉम फॉसल फ्यूल्स बिफोर दे आर बर्न। तो ये इसका आंसर है 10th क्लास। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो इन सवालों के जवाबात जो है ना वो देखना चाहते हों तो वो उसके लिए पेज नंबर डिफरेंट है। तो 10th क्लास के लिए पेज नंबर 153 है। 153 पेज पर पहला सवाल जो है कि ये इमारतों को कैसे नुकसान पहुंचाती है, इसका जवाब ये सेकंड पॉइंट है। सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है जो इमारतों और नबातात को नुकसान पहुंचाता है। और सवाल नंबर 2 कि हवा में से सल्फ़र डाइऑक्साइड को कम कैसे किया जा सकता है, ये बिल्कुल एंड पे आखिरी जो सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से होने वाली पोल्यूशन को रोकने के लिए इस अमर की ज़रूरत है कि फॉसल फ्यूल्स को जलाने से पहले इसमें से सल्फ़र को अलग कर लिया जाए। तो ये इसके आंसर हैं 10th क्लास।